हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एंड देन स्टूडेंट्स वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल? सो स्टूडेंट्स, I have electrochemical cell and electrolytic cell. So दोनों में मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस क्या हैं स्टूडेंट्स, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक डिफरेंस है दैट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और chemical energy is converted into electrical energy, whereas student in electrolytic cell electrical energy is converted into chemical energy. So this is the first point of difference between electrochemical cell and electrolytic cell. Now student, अब आपको ये समझना होगा that electrochemical cell में chemical energy electrical energy में convert होता है. So that means इसका जो working है it is spontaneous. That means in an electrochemical cell a chemical reaction takes place to produce electricity. Rather, we say a spontaneous redox reaction takes place to produce electricity. Whereas, student, in electrolytic cell, we pass electricity to bring about a chemical reaction, which means chemical change तभी होगा जब आप बाहर से electrical energy pass करेंगे. That means the working of this electrolytic cell is non-spontaneous. अपने आप नहीं होता है, आपको continuously energy देते रहना पड़ेगा. Now students, generally in electrochemical cell there is overall a redox reaction, but reduction and oxidation occur in two separate vessels. So we say that electrochemical cell is based on what? Indirect redox reactions. That means oxidation and reduction, they take place in separate vessels, whereas in electrolytic cell, students, both the electrodes they are dipped in the same what electrolyte. एक तरफ reduction होगा, एक तरफ oxidation होगा. Means आपका जो oxidation और reduction जो होगा वो same vessel में होते हैं. So this is an example of what? Direct redox reaction. Now students, another important difference is that generally एक electrochemical cell में salt bridge is required. So internally the circuit is completed by salt bridge. दो students ऐसे भी electrochemical cell होते हैं जिनमें salt bridge की requirement नहीं भी होती है, but generally salt bridge is required in electrochemical cell. But students, since here the two electrodes are dipped in electrolytes which is contained in same vessel, we say salt bridge is not needed. आपको salt bridge की यहाँ जरूरत नहीं होगी because आपका reduction and oxidation same vessel में होता है. So salt bridge is not needed. Now the fifth point of difference is that in electrochemical cell your anode is negative and cathode is positively charged electrode, whereas in student electrolytic cell में क्या होता है? Your anode is positively charged, तभी वो anions को attract करेगा अपनी तरफ, and cathode is negatively charged. Then next point of difference is that
in electrochemical cell, the flow of electrons occurs from anode to cathode. So electrons जो होते हैं, they flow of electrons occurs from anode to cathode. Whereas students, आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स दे आर सप्लाइड बाय द बैटरी. बट होगा क्या, लाइक आपके जो कैथोड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे. सो इलेक्ट्रॉन्स एंटर थ्रू व्हाट, कैथोड, and they leave electrolytic cell at or from anode. So this is the sixth point of difference. Now student, the next point of difference is that आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका जो डिस्चार्ज ऑफ आयंस है दोनों इलेक्ट्रोड्स पे नहीं होता. आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आयंस आर डिस्चार्ज्ड एट व्हाट, कैथोड ओनली. Whereas स्टूडेंट इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैटायन कैथोड पे, एनायन एनोड पे डिस्चार्ज होता है. सो वी से आयंस आर डिस्चार्ज्ड at both the electrodes. कैथोड पे भी और एनोड पे भी डिस्चार्ज होगा. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस स्टूडेंट्स, इट इज दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस होता है, यहां पर मैं कहूंगा द कंसेंट्रेशन ऑफ मेनली द मेटल आयंस increases at anode while it decreases at cathode. आप ये डेनियल सेल से समझ सकते हैं कि डेनियल सेल में एनोड पे जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू जिंक आयंस. सो इलेक्ट्रोलाइट में पहले भी जिंक आयंस थे तो जिंक आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा. बट एट कैथोड स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर व्हाट, आपका कॉपर आयंस दे आर रिड्यूस्ड एट कैथोड. सो इलेक्ट्रोलाइट में से कॉपर आयंस का कंसंट्रेशन बिकॉज दे गेट रिड्यूस्ड वो कम होता जाएगा. सो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस एनोड पे बढ़ेगा, कैथोड पे इट डिक्रीजेस. वेराज इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल स्टूडेंट्स, वी जनरली से जब आयंस माइग्रेट करते हैं टू रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स, दे गेट डिस्चार्ज. सो वी से कंसंट्रेशन ऑफ आयंस generally what, decreases. except अगर आपका इलेक्ट्रॉन एक्टिव हुआ तो concentration of ions may remain same, but otherwise concentration of ions generally decrease करता है. Now students, there is one more point. Now electrochemical cell में students जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, लाइक डेनियल सेल में एक जिंक इलेक्ट्रोड होता है और एक कॉपर इलेक्ट्रोड होता है. सो जनरली electrodes are of what, different material. They are of different material. स्टूडेंट सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है जिनको हम कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं, जहां पर इलेक्ट्रोड्स कैन बी ऑफ सेम मटेरियल, बट अदरवाइज जनरली इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल. बट स्टूडेंट्स इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोड्स जो है, इलेक्ट्रोड्स may be of same or different. They may be of same or different material. वो same material के भी हो सकते हैं, different material के भी हो सकते हैं. So student, these are the main points of differences between electrochemical cell and electrolytic cell. So काफी क्वेश्चंस conceptually competitive exam और board exams में यहां से बन सकते हैं. इनफैक्ट बोर्ड्स में तो ये बहुत बार आता है दैट व्हाट आर द मेन पॉइंट्स और व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल. नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल.
अब ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता क्या है स्टूडेंट्स, ये आपको पहले समझना है। सी स्टूडेंट्स, अगर मैं एक मेटल इलेक्ट्रोड को डिप करता हूं, सो दिस इज मेटल इलेक्ट्रोड, एक सॉलिड मेटल इलेक्ट्रोड है, इट इज डिप्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग मेटल आयंस Mn पॉजिटिव से, एक्वस मीडियम में है। देन स्टूडेंट्स क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो आप समझ लो। एक स्टूडेंट ये हो सकता है दैट दीज मेटल आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन दे व्हाट they collide with the metal electrode but do not undergo any change. That means जैसे वो collide करता है as such ही वो solution में फिर से आ गए। So that means यहां पर इलेक्ट्रोड के ऊपर मैं कह सकता हूं there is no change। ऐसा जब होगा स्टूडेंट तो इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा with respect to electrolyte। But student, then there is another possibility that when metal electrode is dipped in an electrolyte containing metal ions, say Mn positive, so suppose if this metal atom has a tendency to pass into solution, so then what happens is that आपका जो मेटल है, मेटल इलेक्ट्रोड है, if it has a tendency to pass into solution, then we say it undergoes oxidation. The ions they pass into the solution, but electrons they are left on the electrode, giving it what? A negative charge. And student, now this rod has tendency to what? Give electron. So इस इलेक्ट्रॉड का टेंडेंसी हो गया what? To give electron. Another possibility is that जैसे ही आप मेटल इलेक्ट्रोड को डिप करते हो in an electrolyte that contains metal ions Mn positive ions, हो सकता है that metal ions from the solution they deposit on the electrode, that means they get reduced. So अगर स्टूडेंट ऐसा होगा तो उससे क्या होगा, when metal ions have a tendency to deposit on the metal electrode, this will give what? A positive charge, because ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल आयन ने कहां से लिए? वो मेटल एटम से लिए, so metal atom becomes positively charged, so metal electrode has a positive charge. And now students, this rod has what? Tendency to what? Gain electrons. So that means अगर इस पॉसिबिलिटी को छोड़ दिया जाए, then we see that the metal electrode either has a tendency to what? Lose electrons or to gain electron. अब स्टूडेंट हुआ क्या वो मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब हुआ ये that at electrolyte interface means इस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के सरफेस पे होगा क्या? द मेटल आयन हैज व्हाट? टेंडेंसी टू पास इनटू सॉल्यूशन एंड लीव बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द इलेक्ट्रोड, which then tries to make it what? Negatively charged. और स्टूडेंट ऐसा जब होगा, we say that electrode has a negative charge with respect to solution. और स्टूडेंट्स at the same time ये भी हो सकता है that the metal ions from the solution they deposit on the metal electrode and try to make this electrode positively charged. So in either case, चाहे ये वाला हो केस या ये वाला हो, in either case students there is a charge separation. There is a charge separation between the electrode and the electrolyte. In this case, electrode has a negative charge with respect to solution, and in this case electrode has a positive charge with respect to solution. So students, जब equilibrium establish हो जाएगा, electrode will have either a negative charge or positive charge with respect to solution. So because of this charge difference between
the metal electrode and the electrolyte, a potential is developed which is called electrode potential. So इस चार्ज डिफरेंस की वजह से एक पोटेंशियल सेटअप होगा बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट, and this is called electrode potential. So students, since we see that electrode has what, either tendency to lose electron or to what, gain electron, this means this electrode potential is a measure of the tendency of an electrode to lose electron or to gain electron. Now when this rod has a tendency to what, lose electron, we say oxidizing होगा ये electrode, because इस पे oxidation होगा. But when this electrode has a tendency to gain electron, student, then ये reducing tendency की वजह से होगा. So this is reducing electrode. So that means electrode potentials are of what, two types. Electrode potential के दो types हैं. One is called oxidation potential, and the second type is called reduction potential. अब स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल है क्या, आप इसको थोड़ा सा समझ लें. नाउ सी स्टूडेंट्स, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन हैज टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स or to get oxidized, we call it oxidation potential, and when electrode has a tendency to gain electrons or to get reduced, it is called reduction potential. So we have two types of potentials, oxidation potential and reduction potential. So students, first we are going to discuss oxidation potential. So what is oxidation potential? Oxidation potential is tendency of, this is tendency of an electrode to what, lose electrons or get reduced now students, how to show this tendency means, अगर मैं कह रहा हूं एक रॉड का टेंडेंसी है to lose electron or to get oxidized, then we represent electrode reaction on this electrode as what, oxidation. So ये है, so oxidation potential किसी भी इलेक्ट्रोड का टेंडेंसी होगा to lose electron or to get oxidized. So this is simply a measure of tendency of an electrode to lose electron or to get oxidized, and we represent this in this fashion. And student, अब मेटल आयन का बनने का जो टेंडेंसी है फ्रॉम मेटल इलेक्ट्रोड, वो कितना होगा, उसी को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड वी डिनोट इट बाय ई. और हम जब भी ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे, वी राइट मेटल फर्स्ट एंड देन मेटल आयंस. एंड जो भी पोटेंशियल होगा स्टूडेंट, वो वोल्ट्स में होगा, इन वोल्ट्स. वो आपको पता है पोटेंशियल इज एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट्स. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट सी, अगर जिंक इलेक्ट्रोड ये टेंडेंसी शो करता है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ओपी लिख रहा हूं मैं, ओपी इज फॉर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वी राइट इट एज जिंक गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक आयंस, एंड इट इज मेजर्ड टू बी व्हाट, 0.76 वोल्ट. स्टूडेंट एक चीज और मैं बता दूं, दैट whenever the concentration of the species of the half cell is 1 molar, that is unity, electrode potential is called standard electrode potential. So एक होता है electrode potential जिसको हम E से denote करते हैं, but students, when concentration of the species of the half cell is taken unity or is 1 molar, we call it standard, हम उसको standard electrode potential बोलते हैं. So under standard condition, इसको हम E नॉट से डिनोट करेंगे. जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड ही ले लेता हूं मैं, इट इज 0.76 वोल्ट. सिमिलरली स्टूडेंट से आयरन, अगर ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी शो करता है, इट फॉर्म्स ए फेरस आयंस. सो इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी रिप्रेजेंटेड एज व्हाट, वी राइट आयरन फर्स्ट एंड देन फेरस आयंस, एंड इट इज 0.76
0.44 वोल्ट। एक और केस ले लेते हैं, से निकल व्हेन अंडरगोज ऑक्सीडेशन एट एन इलेक्ट्रोड, से इस तरह से है, देन ये जो टेंडेंसी है इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, और वी राइट इट इन दिस फैशन एंड इट इज 0.25 वोल्ट्स। सो ये सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज है स्टूडेंट। अब आप देखो स्टूडेंट्स, से अगर मुझे कंपेयर करना हो जिंक, आयरन एंड निकल को in terms of what tendency to get oxidized or tendency to lose electron, so सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका है? 0.76 सबसे ज्यादा। सो वी से दैट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो जिंक इलेक्ट्रोड का ज्यादा होगा आयरन इलेक्ट्रोड से, और आयरन इलेक्ट्रोड का ज्यादा होगा निकल इलेक्ट्रोड से, विच मीन्स हायर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, greater the tendency of that electrode to lose electrons or to get oxidized. So ये था students oxidation potential. Now the second type is reduction potential. Now what is reduction potential? Students, reduction potential is a measure of tendency of an electrode. It is measure of tendency of an electrode to gain electrons. So reduction potential है टेंडेंसी, पोटेंशियल का मतलब ही होता है टेंडेंसी, सो इट इज टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स और टू गेट reduced, and this is shown by this change that now the metal ions, they gain electrons, and at equilibrium when there is charge separation a potential is developed. So when metal ions show tendency to deposit on the metal electrode, we say it is the reduction potential, and under standard condition जो भी value होगा E naught वो volts में होगा. Like students, copper electrode when shows this tendency, its reduction potential is measured, and we write it as we write now metal ions first and then metal, and it is found to be 0.34 volts. Similarly, say when silver ions, they undergo reduction at equilibrium when there is charge separation, a potential is developed which is called reduction potential, and it is found to be what 0.80 volt. Now students see, दोनों इलेक्ट्रोड्स में से किसका टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, एंड पोटेंशियल किसका ज्यादा है? सिल्वर का. सो वी से दैट रिडक्शन पोटेंशियल वाइज सिल्वर इलेक्ट्रोड हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन देन कॉपर. सो इस तरह से स्टूडेंट्स हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉड्स के टेंडेंसीज को टू लूज इलेक्ट्रॉन और टू गेन इलेक्ट्रॉन्स मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. बट स्टूडेंट्स, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, दैट IUPAC ने एक कन्वेंशन बनाया है दैट व्हेनेवर इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल्स आर टू बी कंपेयर्ड, वी कंपेयर देम इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स. इसका मतलब ये हुआ दैट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको रिडक्शन पोटेंशियल में, एंड देन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हम बता सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोड प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइजिंग और कौन सा प्रेफरेंशियली रिड्यूसिंग होगा. जैसे सपोज स्टूडेंट्स, मैंने कहा था जिंक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन जो टेंडेंसी है वो इस तरह से डिनोट किया था मैंने, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हमने लिखा था जिंक gives zinc 2 positive and it is 0.76 volt. ठीक है. But students, taking into account the conventions which are given by IUPAC, we have to what? Write this reaction as a reduction. उसके बाद हम देखेंगे that इस इलेक्ट्रॉड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है या गेन करने की है. सो अभी वो एज ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीडेशन रिएक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं. सो दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. बट स्टूडेंट,
मुझे इसको जब रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो मैं इसका ऑपोजिट रिएक्शन लिख दूंगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम तो किसी भी साइड से अप्रोच किया जा सकता है. सो नाउ दिस इज द इलेक्ट्रोड रिएक्शन. बट स्टूडेंट अब जो पोटेंशियल होगा से स्टैंडर्ड ही है. नाउ वी हैव जिंक आयंस गेटिंग रिड्यूस्ड टू जिंक, एंड स्टूडेंट ये वैल्यू अब कितना होगा, आपने साइन चेंज कर देना है. सो दैट मीन्स आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा इट विल बी नेगेटिव ऑफ व्हाट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. अब स्टूडेंट से मेरे पास ये 3 इलेक्ट्रोड्स हो गए, एक, ये दूसरा, ये तीसरा. अब तीनों को मैं देखूंगा, मैंने तीनों को एज रिडक्शन ही रिप्रेजेंट किया है. अब देखो आप किसका रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है. सो वी हैव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का सबसे ज्यादा. दैट मीन्स दिस रॉड से सिल्वर इलेक्ट्रोड का टेंडेंसी गेन इलेक्ट्रॉन को करने का सबसे ज्यादा होगा. उसके बाद कॉपर एंड इन सबके बाद जिंक आएगा. इसका मतलब स्टूडेंट से इफ आई मेक an electrochemical cell by taking these 2 electrodes, this rod has a greater tendency to gain electrons, so this will act as cathode and this will act as anode. Similarly, if I make an electrochemical cell by taking copper and zinc, then copper has higher reduction potential than zinc. Now copper will act as cathode and zinc will act as anode. So whenever we have to compare the relative tendencies of electrodes to gain or lose electron, we compare them in terms of what, reduction potential. जिसका reduction potential ज्यादा होगा स्टूडेंट वही इलेक्ट्रॉन प्रेफरेंशियली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दैट मीन्स कैथोड एक्ट करेगा. और दूसरा उसके साथ अगर कपल कर दिया जाए तो एनोड्स, दैट मीन्स इनमें ये कैथोड ये एनोड. और अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसे डेनियल सेल कॉपर और जिंक में था, देन जिंक विल एक्ट एज एनोड क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, विच मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है. सो ये आपका एनोड होगा और ये कैथोड होगा. सो स्टूडेंट्स दिस वाज आवर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. नाउ स्टूडेंट्स हाउ दीज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर मेजर्ड. ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किए कैसे जाते हैं. तो एक बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट वैल्यूज. व्हाई दे आर नॉट एब्सोल्यूट? बिकॉज स्टूडेंट कोई भी सिंगल हाफ सेल वर्क नहीं कर सकता. सो सिंस no half cell can work independently, the absolute electrode potential cannot be measured. हम जो potential measure कर सकते हैं वो हमेशा relative होगा, which means we can only measure what, the difference in the potentials of the 2 electrodes. Like अगर मैं से इन दोनों के बीच में एक कपल करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाऊं तो मैं इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल्स का डिफरेंस मेजर कर सकता हूं. इन दोनों में से किसी एक का पोटेंशियल अगर मुझे पता हो तभी मैं दूसरे का पोटेंशियल निकाल सकता हूं. विच मीन्स पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज अ रिलेटिव वैल्यू, इट इज नॉट व्हाट, एब्सोल्यूट वैल्यू. सो स्टूडेंट्स ये कैसे मेजर होगा दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.